young physics learner. This video is basically for class 11th and today I will explain some numericals trick for you, and these numericals are based on vectors. Okay, I told you about vector and I discussed about vector analysis, resolution of vectors and different position vector, velocity vector, acceleration vector in my previous video. And now you know that in class 11th every chapter, basically kinematics and dynamics, is based on numericals, and these chapters are very much important for competitive examinations. And basically in every competitive examination, whether it is NEET or Z, you need to attempt these kind of numericals which are based on the combinations of the topic. So if you are able to solve the numericals, you can handle these kind of topic in competitive examination. So by that view, these two topics are very much important. अब इन दो topics के अंडर में chapters कौन कौन से आते हैं? आपने जो first chapter पढ़ा था, that is unit and measurement, वो chapter different है. इसके बाद जब motion in a straight line, motion in a plane, Newton's law of motion, ये 3 chapters जिसके अंडर में आप बहुत सारे सब topics पढ़ोगे, like circular motion, projectile motion and motion in a plane. You will take the different conditions and pulley, especially pulley conditions, friction. So these kind of topics, subtopics are very much important, and we have to solve the numericals based on these topics. Rest is only the derivation and formula, and you have to keep every formula in your mind and must have command how to apply the formula and where to apply the formula and in which conditions. So we will solve some numericals. You will get an idea to how to solve these numericals. Okay, so let's start with the first numerical. So here the first numerical is A, B and C. These are the 3 vectors. Okay, 3 vectors. Value, the magnitude of A, B and C are given as, that value is 5 unit, 4 unit and 3 unit. Okay, this is given, and it is also mentioned that A is equal to B plus C. Okay, then find angle between A and C. Okay, this one is the numerical. So every numerical is very interesting, first thing, and second thing, these numericals are very tricky. Okay, if you are able to solve these kind of numericals, you are able to get confidence to solve the numericals as well as to get command over these topics. So here it is mentioned that these are the 3 vectors and you need to find out the angle between A and C. So what you have to do, first of all, जो डेटा दिए हुए होते हैं आप उनको यूज करते हो. पहले तो डेटा को अच्छे से देख लो, कौन कौन से डेटा दिए हुए हैं. आपको ABC की वैल्यूज दी हुई हैं. ठीक है, आप इन डेटा को यूज करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि A और C के बीच में एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि A और C में रिलेशन निकाल लेंगे. सबसे पहले तो रिलेशन आ रहा है कि B इज इक्वल टू A माइनस सी बाई दिस गिवन रिलेशन. एक पॉइंट है जो अपने माइंड में हमेशा फिट कर लो कि कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं हो सकता जिसमें आपको पूरे के पूरे डेटा ना दिए हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के. कोई भी न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट नहीं होता, और कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जिसमें ट्रिक ना दी हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की. बस यूज़ करना है तो आपको अपना माइंड, वो भी राइट टाइम पे. ठीक है, सो A इज इक्वल टू B प्लस C, B इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस C. दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म. Now if you want to find out the angle between A and C, we need to take the 2 times A and C in the dot product. So what we will do, B dot B. If we want to solve this dot product, we need to take this A minus C dot A minus C. Okay, now what you have to do, you will solve this dot product by the simple
मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर आपको यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी सॉल्व करना तो आप क्या करोगे, a इंटू बी, b इंटू ए, b इंटू बी, सिंपल। बस यहाँ पर जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उसमें आपने डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेना है। सो यू विल टेक इट एज a डॉट a, फर्स्ट थिंग। सेकेंड आपका क्या आएगा, a विद माइनस साइन, a डॉट c, सेकेंड। थर्ड टर्म माइनस लगेगा, c डॉट a, एंड फोर्थ टर्म माइनस एंड माइनस प्लस c डॉट c। इज इट क्लियर? अब आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। आपको पता है कि अगर ये सेम वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। अगर सेम वेक्टर्स हैं तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द सेम वेक्टर। एक वेक्टर b ऐसे बना है तो दूसरा वेक्टर b यही तो होगा, दैट मीन्स एंगल इज व्हाट, इट इज 0। सो cos 0 इज 1, सो यू विल गेट ओनली द मैग्नीट्यूड। ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में भी मैंने आपको बताया था। सो यू कैन पुट डाउन द मैग्नीट्यूड इन द डॉट प्रोडक्ट फॉर द सेम वेक्टर्स, ठीक है। सो b डॉट b के लिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, दिस वन इज द मैग्नीट्यूड, यू कैन टेक द मॉड हियर। तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इन दोनों टर्म्स में हम ये लॉ यूज कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव मीन्स क्या है कि a डॉट c इज इक्वल टू c डॉट a। तो आप चाहे a डॉट c लिखो या c डॉट a लिखो, बोथ आर सेम थिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल राइट इट एज ट्वाइस ऑफ a डॉट c। क्लियर? अब इससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड c। अब यहाँ पे a डॉट c में एंगल आ रहा होगा किसके बीच में, a एंड c के बीच में। सो a डॉट c प्लस इनका क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। क्लियर? अब आप देख लो क्वेश्चन में वैल्यू भी दी हुई थी 5 4 3 a b c। तो b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3। b की वैल्यू रखो 4 स्क्वायर, a की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस, ये आपका माइनस में था, दोनों माइनस में है, डबल हो गए थे, तो ट्वाइस a c cos थीटा, यही थीटा हमें निकालना है, विच इज द एंगल बिटवीन a एंड c, प्लस c स्क्वायर। सो c स्क्वायर की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है 3, सो यू विल टेक 3 स्क्वायर। क्लियर? अब देखो सारे टर्म्स आपको पता है, ये मॉड ऑफ a मॉड ऑफ c है क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दिया है। तो मॉड a मॉड c की वैल्यू भी आप यहाँ पर रख सकते हो, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई एम पुटिंग द वैल्यू 5 इंटू 3। क्लियर? अब सिंपल इसको सॉल्व कर लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हियर यू विल टेक 4 स्क्वायर 16 25 माइनस 30 cos थीटा प्लस 9। सो 30 cos थीटा दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस में, दैट मीन्स 9 9 प्लस 9 18। सो cos थीटा 18 30 दैट इज थीटा इज इक्वल टू, आपको थीटा निकालना था यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस इज वन इज 3, दैट मीन्स 3 6 बाई 10 दैट इज 3 बाई 5, 3 बाई 5। सो ये वैल्यू आ गई 3 बाई 5। आप इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, या तो अगर आपको टेबल दी जाती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म निकालने होते हैं वो टेबल से आप निकाल सकते हो। नहीं आता होगा तो मैं एक क्लास आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल के लिए ले लूँगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो 3 बाई 5 अगर आप देखोगे सो इट विल कम एज 0.6। क्लियर? 0.6 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें 0.6 आ रहा होता है। अब आप cos की वैल्यू को ध्यान करो तो cos 0 कितना होता है 1, cos 30 √3/2। √3/2 का मीन्स क्या है, √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 2, सो विल गेट इट एज 0.8 समथिंग। ओके, 8 6 एंड 5 8 6 5 6, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। अब आप ये cos 30 की वैल्यू इतनी निकल करके आ रही है और यहाँ पे वैल्यू कितनी 0.6, यानी इससे और कम जाएंगे तो cos 45 1/√2, 1/√2 मीन्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज
रूट 2 इज 1.414. सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7.7 अप्रॉक्सीमेटली, यानी जो वैल्यू आ रही है वो 45 से थोड़ा ऊपर एंगल आएगा. देखो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है कॉस की. सो 0.6 मीन्स व्हाट, इट इज़ ग्रेटर देन अप्रॉक्सीमेटली कॉस 50 की वैल्यू ये हो सकती है. ठीक है. सो थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री एंगल. लेकिन आपसे एंगल ये एग्जैक्ट पूछा नहीं जा रहा है कि आपको 50 डिग्री वैल्यू निकालनी है कि 40 डिग्री. वो तब पूछा जाता है जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल प्रोवाइड की जाती है. अदरवाइज आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो. दिस इज योर आंसर. आप इस फॉर्म में भी आंसर निकालते हो. सो बाय दिस वे यू विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है क्वेश्चन में एंड वैल्यू ऑफ ए डॉट बी. सिंपल है ये क्वेश्चन, कर लोगे. ठीक है ना, सिंपल है. देखो आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने बताया था. जब भी कोई न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल में मैं अभी इनिशियल स्टेज पे बता रही हूँ. अब जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप फाइनली अपने आप ही बिना वैल्यूज़ को रखे हुए आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो. बट इट टेक्स टाइम, इट नीड प्रैक्टिस. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए और बी दिए हैं. दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स आर वेरी ईजी जब आप रिजोल्यूशन पे आ जाते हो. आई आपको पता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, मॉड ऑफ ए. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए डॉट ए. ए डॉट ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मॉड ऑफ ए स्क्वायर. ये वेक्टर प्रॉपर्टी से आता है. तो आप सिंपल ए डॉट ए कर दो, आपको मॉड ए की वैल्यू मिल जाएगी. यानी मॉड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए डॉट ए. Now solve this value. It will be having 3i plus 4j dot 3i plus 4j. ठीक है. डॉट पे क्या आ जाएगा इसका, अंडर रूट पे i डॉट i का रिजल्ट 1 होता है, i डॉट j का रिजल्ट 0 होता है. तो i डॉट j को करोगे क्यों, ये i डॉट j और j डॉट i ये दोनों टर्म्स आप छोड़ दोगे. ठीक है. तो अगर आपके 2 यानी a प्लस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके ओवरऑल 4 टर्म्स आते हैं, ये आपको पता ही होगा. ठीक है. ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये 4 टर्म्स है जिसको हम 3 टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. फॉर्मूला आपको पता ही है इसमें. देन यहाँ पर आप देखो तो आपके 2 टर्म्स तो ऑलरेडी ये कट रहे हैं, ये नहीं आएंगे. क्यों, क्योंकि इसमें आई डॉट जे आएगा, जे डॉट आई आएगा एंड जे डॉट आई डॉट जे बोथ आर जीरो. वाई दे आर जीरो, ये आपको मैंने रिजोल्यूशन या वेक्टर की प्रॉपर्टी में दोनों में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख लेना वो वीडियो. सो यहाँ पर 3i प्लस 4j, इसमें आप आई और जे वाले सॉल्व करोगे. सो 3 इंटू 3 इज 9 एंड 4 इंटू 4 इज 16. सो दैट इज मॉड ऑफ ए. सो मॉड ए इज इक्वल टू ये 25 अंडर रूट 5. सो दिस पर्टिकुलर यूनिट फिजिक्स में आप जब लास्ट आंसर निकालते हो उसमें साथ में यूनिट लिखना रिक्वायर्ड होता है. अगर नहीं गिवन होती है सेंटीमीटर, मीटर या किलोग्राम, ग्राम, ये नहीं दी होती है तो आप यूनिट लिख देते हो सिंपल, लेकिन लिखते हो. ठीक है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पर मार्क्स डिडक्शन होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करो तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन ही नहीं आती, वहाँ पर यूनिट्स वगैरह दी हुई होती हैं. क्लियर. सो दिस वन इज द फर्स्ट आंसर. नाउ सेकेंड आंसर, ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है. जैसे आपने ये किया था वैसे ही आप ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लोगे. सो ए डॉट बी, अब आप डायरेक्ट मेथड देख लो, ए डॉट बी करना है. ठीक है. तो आप यहाँ पर आई वाला सॉल्व करोगे, जे वाला सॉल्व करोगे, आई जे और जे आई वाला सॉल्व नहीं करोगे जो मैंने पहले बताया था. मीन्स अब आपको एक ट्रिक ये पता चल गई कि आपने सिंपली जब भी डॉट प्रोडक्ट हो सिंपल आई और जे एंड के वाले यूनिट्स को ही मल्टीप्लाई करना है, बाकी यूनिट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है. सो हियर 3 इंटू 12, सो इट इज़ 36 एंड 4 इंटू 5, माइनस साइन ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा है, तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस ये भी वैल्यू देखनी होती है. सो माइनस हो गया, 5 इंटू 4 20, सो यू विल गेट द वैल्यू एज 16. सो ए डॉट बी की वैल्यू 16 आ रही है. ठीक है. 16 यूनिट. दिस वन इज द सेकेंड आंसर. सो बाय दिस वे यू विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. इट इज इजी है.
F1, F2, F3, ये 3 वैल्यूज आपके क्वेश्चन में हैं। फर्स्ट वैल्यू 4i 5j 6k, थर्ड वैल्यू D2 निकालना है। ये भी बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इसमें देखो आप करोगे क्या कि सबसे पहले जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पर, यहाँ पर कोई बॉडी D1 पोजीशन पर है, D1 से D2 पोजीशन पर जा रही है, और जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं विच इज़ इनिशियली एट D1। तो 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जब रिजोल्यूशन फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसका नेट फोर्स निकालोगे। सो F नेट दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। सिंपल इसी फॉर्म में होगा। देखो अगर वैल्यूज दी होती कि एक फोर्स, ये एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स हॉरिजॉन्टली इस तरीके से एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, तीसरा फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन सबका एडिशन करते, बट देखते कि डायरेक्शन क्या आ रहा है। ठीक है, F1, F2, F3 इनकी वैल्यूज दी होती तो हम हॉरिजॉन्टल से इनका डायरेक्शन देखते और वो सारे डायरेक्शंस का हम ये कॉम्बिनेशन निकालते, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते यहाँ पर कितना माइनस करके आ रहा है, इनका रिजोल्यूशन करते F3 और F1 का, और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते, एक F2 के डायरेक्शन में और एक वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में। फिर वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करते, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड करते। तो इस तरीके से हम फोर्सेस निकालते बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब ये रिजोल्यूशन फॉर्म में दिया होता है तो रिजोल्यूशन फॉर्म इजी होती है डायरेक्टली ऐड करने के लिए, यही है इंपॉर्टेंस रिजोल्यूशन की। सो यहाँ पर जो फोर्सेस दिए हुए ये रिजोल्यूशन फॉर्म में दिए, तो आप सिंपली, क्योंकि ये डायरेक्शन है इसमें I J K में क्या क्या डायरेक्शन है, आप सिंपली इसको I वाले टर्म्स को ऐड कर सकते हो, J and K की। सो हियर you will add all these terms and you will get the result. So सारे I terms को add करो, 10 plus 4 minus 2, so it will come as 12i, then 1 plus 5 plus 1 that is 7, and plus 11 plus 6 minus 9, so it will come as 8, yeah 8k। ठीक है, सो ये F नेट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डेल्टा D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 माइनस ऑफ D1। वैल्यू माइनस कर दो इसमें, एक पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पोजीशन को माइनस करोगे। सो हियर इट विल कम एज 6 minus 5 that is I, उसके बाद 2 minus of minus 5 that is it will be add up, so it will come as plus 7j minus 2 plus 7, ये माइनस हो रहा था प्लस हो जाएगा, so minus 2 plus 7 that is plus 5k। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब सिंपल आपने फोर्स निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, देन वर्क इज इक्वल टू होता है F डॉट D, डॉट प्रोडक्ट होता है, सो विल टेक इट एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो विल नॉट पुट द वेक्टर साइन हियर एंड देन यू विल टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अगेन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, I वाले टर्म्स को करते हैं, I J या I K नहीं करेंगे, सेम फॉर अदर रेस्ट टर्म। सो हियर I और I, अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए पूरा डेटा भी नहीं लिखोगे, सिंपल I वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, सो इट विल कम एज 12, 7 into 7 49, 8 into 5 40, so we will get the answer as it is 89, 99, 101. So this much is the work done corresponding to the force to move the body from D1 to D2 position. This point is clear?
Numerical clear? Okay, in your next question you have to prove that if you are taking a triangle made up of three vectors, this is vector A, vector B and vector C. Okay, these are the three vectors. The angle in front of vector A is alpha, in front of vector B is beta, in front of vector C is gamma. Okay, these are the three triangles which are provided. So it is given in the question, you have to prove that sine alpha over A, sine alpha over A, that is equal to sine beta over B, that is equal to साइन गामा ओवर सी. आपको ये प्रूफ करना है. ठीक है. अच्छा, एक बात मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना है मुझे आपको कि इस पर्टिकुलर टर्म्स को हम कहते हैं लैमीज थ्योरम. ये मैथमेटिक्स जो बच्चे नॉन मेडिकल फील्ड के हैं उनको पता होगा कि लैमीज थ्योरम में इफ थ्री वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट O, if there are three vectors that are acting at a point O, let these vectors are A, B and C. Okay, then the sine, that sine of angle, this angle corresponding to vector A, the corresponding angle is alpha here, the angle between B and C. Here the angle is between B and C. In front of B vector the angle is beta, in front of C vector the angle is gamma. Then Lami's theorem, according to Lami's theorem, sine alpha over A is equal to sine beta over B is equal to sine gamma over C. That is the proved condition. These are the three vectors acting at point O. If this is the condition, this particular relation is called Lami's theorem. और ये थ्योरम बहुत यूजफुल है किस कंडीशन में, जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को सॉल्व कर रहे होते हैं. हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ये कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं. इसलिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको प्रूव कर पाओ कि वेदर दिस लैमीज थ्योरम इज करेक्ट वन और नॉट. इट इज एक्चुअली, this numerical is actually the proof of Lami's theorem. So it is very important. Be with me to see how I will solve it from the vector analysis method. Okay. So here these are the three vectors forming a triangle that you know. Now if this one is a triangle, you can take it as, vector A plus B plus C, this is equal to 0 वेक्टर. क्लियर है. देखो, जब वेक्टर क्लोज सर्किल, लॉ ऑफ ट्रायंगल आपको पता है वेक्टर का, मैंने आपको बताया था. लॉ ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि यहाँ पर अगर थ्री वेक्टर्स ज्वाइंट होकर के एक ट्रायंगल बना दे तो उन थ्री वेक्टर्स का सम 0 होता है. क्लियर. तो ये सिचुएशन यहाँ पर है. ये थ्री वेक्टर्स हैं जो ट्रायंगल बना रहे हैं. ए से स्टार्ट हुआ, A टू यहाँ इस पोजीशन पे गया, ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक गया, उसी से नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट हुआ, उसी से नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट हुआ. अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट मीट आउट कर जाते हैं, या आप इस तरीके से कह लो कि थ्री वेक्टर्स अगर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, देन द एडिशन ऑफ दैट थ्री वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0. और उसको आपने अप्लाई किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, जब आप पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे. मैंने आपको उस वीडियो में बताया था पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर में आपने यही ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया था. क्लियर. अब यहाँ पर देखो, तो A plus B plus C is equal to 0 है. Now what we will do, we will take it as मेथड. आप देख लो मेथड किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ. क्रॉस A plus B plus C को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ. क्रॉस और डॉट का मल्टीप्लिकेशन आपको स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हो. सो दैट A plus B क्रॉस मैंने B से मल्टीप्लाई किया और 0 मल्टीप्लाइड बाई B, ये दोनों साइड में किया. ओके. रिजल्ट क्या आएगा? बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. A क्रॉस B प्लस B क्रॉस B प्लस C क्रॉस B, that is equal to 0 vector multiplied by any vector is only 0 vector, which is called also null vector. So A cross B
बी क्रॉस बी कितना आएगा, 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0। क्यों? क्योंकि बी क्रॉस बी का मीनिंग होता है बी इंटू बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड बी। कितना होना चाहिए एक ही वेक्टर अगर है तो थीटा इज 0, सो साइन 0 इज 0, सो दैट इज व्हाई द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो हियर दिस टर्म विल कम एज 0, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट टर्म आपका क्या था, प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ए क्रॉस बी, इसको इस साइड लेकर तो क्या आएगा, इक्वल टू की साइड माइनस ऑफ सी क्रॉस बी, और माइनस ऑफ सी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस ऑफ बी क्रॉस सी। देखो आपने क्या किया, वेक्टर का मेथड अप्लाई किया। वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉन कम्यूटेटिव प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी करना चाहते हो तो एक माइनस बाहर आएगा एंड माइनस माइनस बिकम प्लस। सो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट। कीप इट एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ अब आप क्या करोगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को a प्लस बी प्लस सी, इस इक्वेशन को मैं फर्दर c से क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ दोनों साइड में, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 मल्टीप्लाइड बाई या क्रॉस या डॉट एनी वेक्टर that will come as 0. So here you will multiply it, a cross c plus b cross c, c cross c 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं रख रही हूँ, पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। So here you will get it as a cross c, this is equal to minus of b cross c। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस ऑफ बी क्रॉस सी, यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप इनमें कंपेयर करो, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। बी क्रॉस सी, यहाँ पर है बी क्रॉस सी, अब बी क्रॉस सी इज इक्वल टू है ए क्रॉस बी। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी बी दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस सी ए क्रॉस सी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन था तो अगर आप a क्रॉस b को b क्रॉस c के इक्वल रख रहे हो तो b क्रॉस c इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस c, तो माइनस ऑफ a क्रॉस c आ रहा है। इस माइनस को हटाने के लिए आप कम्यूटेटिव लॉ लगा दो, वो माइनस हट जाएगा। वेक्टर साइन लगाना मत भूलना सब में। a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। क्लियर है? आपने a क्रॉस c को c क्रॉस a में करोगे तो ये माइनस साइन रिमूव हो जाएगा बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। तो आपके पास ये जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है इसी को अब आप यूज़ करने वाले। इसके बाद में ऊपर कर रही हूँ, यहाँ से ये ऊपर है। जब a क्रॉस b आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन a और b के बीच का एंगल, ओ सॉरी मैंने वो फिगर हटा दी है। a के सामने वाला एंगल था अल्फा, बी वेक्टर के सामने वाला एंगल है बीटा एंड सी वेक्टर के सामने का एंगल है गामा। तो अगर आप a क्रॉस b कर रहे हो, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा इधर से करूँगी, a क्रॉस b कर रहे हो तो इनके बीच का एंगल आएगा गामा। दैट मीन्स a क्रॉस b का रिजल्ट आएगा ए बी साइन गामा। क्लियर? दैट इज इक्वल टू b क्रॉस c करोगे तो अल्फा आएगा यानी बी सी साइन अल्फा, और c क्रॉस a करोगे दिस वन तो बीटा आएगा। दैट मीन्स सी ए, अब मैं इसे रिमूव कर दे रही हूँ, सी ए साइन बीटा, ये टर्म आ गए। अब इनको क्या करो, आप डिवाइड कर दो ए बी सी से, तीनों को ए बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तीनों को डिवाइड किया है। रिजल्ट क्या आएगा, साइन गामा ओवर सी that is equal to sin alpha over a that is equal to sin beta over b। बाकी टर्म कैंसिल हो रहे हैं। अब आप ये रिलेशन देख लो, दिस इज वन इज द प्रूफ, sin alpha over a sin beta over b sin gamma over c। so you have proved this situation and that is why Lami's theorem is correct one in the case of triangle। अगर जब भी आपकी ये क्वेश्चन में हो कि कोई भी फोर्स है
या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है जो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो, तो उसमें आप लेबनिज़ थ्योरम लगा सकते हो। या जो दूसरी सिचुएशन मैंने आपको पहले बताई कि आप किसी पॉइंट पर अगर वेक्टर डिफाइन है और उनके बीच में एंगल दिया हुआ है, तो आप लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। यू कैन use it, you can put it in each solution. Got it? So here two vectors are given, a and b. You have to find out the parallelogram. इनसे जो parallelogram बन रहा होगा, कैसे बनता है parallelogram बताइए। ये two adjacent vector हैं, तो ये parallelogram बना सकते हैं, a vector and b vector, जिससे आप parallelogram बना लोगे। इस parallelogram का एरिया अगर निकालना है, तो एरिया का मीन्स होता है कि आप ये साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप रेक्टेंगल निकाल रहे हो, रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो क्या करोगे कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सेम इज द हियर केस ऑफ पैरेललोग्राम। सो जो वेक्टर्स दिए हैं उनको आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट से आपका एरिया यहाँ पर नहीं आएगा। I 2j 3k एंड b इज -3i -2j plus k. So you have to find out the area of this parallelogram made by this adjacent vectors. यहाँ पे adjacent vectors दिया हुआ है क्वेश्चन में। So area a क्रॉस b, क्लियर। a क्रॉस b को निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट लगाते हो, मैंने आपको मेथड बताया था। i j k डिटर्मिनेंट, i के कोरस्पॉन्डेंस में जो भी मैग्नीट्यूड है वो यहाँ रखते हैं। a के लिए पहले a रखेंगे, a फर्स्ट जो सेकेंड रो आती है, दिस इज द फर्स्ट रो, ये इसको हम कहते हैं रो, इसको कहते हैं कॉलम। सो फर्स्ट रो में आई जे के रखते हो, सेकेंड रो में ए के मैग्नीट्यूड से होते हैं आई जे के कोरस्पॉन्डेंस में रखेंगे। सो आई कोरस्पॉन्डेंट मैग्नीट्यूड इज 1, जे 2, के 3 एंड बी के लिए आप रखोगे -3, जो भी मैग्नीट्यूड है वो प्लस और माइनस साइन को पुट करते हो। सो -3 -2 1, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाता है, ये मैंने आपको कॉलम और रो बताया था, अदरवाइज डिटर्मिनेंट इज शोन इन दिस मैनर। अब आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, जो आई जो फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, इसमें पहला टर्म प्लस होता है, दूसरा टर्म माइनस, तीसरा टर्म प्लस, प्लस माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप आई के फॉर्म में इसे सॉल्व कर रहे हो, तो जब आप आई लोगे, आई के साथ में आई की कॉलम, आई के रो को हाइड कर दोगे, कॉलम एंड रो हाइड हो जाएंगी, बचेगा कौन सा टर्म, ये 4 टर्म्स बचेंगे। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट टू राइट, दैट इज 2 × 1 2। अब बीच में माइनस साइन आता है, ऑलरेडी एक माइनस साइन आता है, अगर साथ में टर्म्स में माइनस है तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, दैट मीन्स -6, सो ये हो जाएगा प्लस, क्लियर। अब उसी तरीके से जे के लिए सबसे पहले जे के साथ में माइनस साइन लगना है, जे के कॉलम को और जे के रो को हम हाइड कर देंगे, कॉलम एंड रो हाइड हो जाएगी, बचेंगे 1 3 -3 1, ये टर्म्स बचे। अब 1 3 -1 को सॉल्व करने के लिए इधर से स्टार्ट करते हैं। सो 1 × 1, सो इट विल कम एज 1, माइनस लगाएंगे, उसके बाद एक माइनस ये भी है, -3 × 3 इज -9, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आया, तो माइनस माइनस प्लस। नाउ यू विल टेक द के वैल्यू, के कॉलम और के की रो को हाइड कर देंगे, सो कॉलम एंड रो बोथ आर हिडन, 1 2 -3 -2, के साथ में 1 × -2 इज -2, माइनस साइन ऑलरेडी लगना है यहाँ पे, -3 2 इज 6 विद प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस आया था, ऑलरेडी एक माइनस था, इट विल बिकम प्लस। And now you will solve it. So if you are taking this condition, so 6 + 2 is 8i, minus sign -10j and minus here plus, ये हो जाएगा plus 4k. So this one is the result of A cross B. That is, this one is the area vector. एरिया वेक्टर आ रहा है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करोगे, mod of A cross B कर दोगे। तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं, √ आई के टर्म का स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे निकलता है इसका आपका मैग्नीट्यूड इस पूरे टर्म का। आप इसको निकालोगे तो आ जाएगा 64 116 एंड देन यू विल सॉल्व इट। सो 164 ये हो गया आपका 16 और 64 हो गया आपका 80, ठीक है। 80 + 100 √180, √180 आप अगर लेते हो
तो 6 बाहर आ गया, ठीक है, 6√5। सो दैट इज़ द रिजल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं एंड दीज न्यूमेरिकल्स आर समवॉट डिफरेंट विद ईच अदर। नेक्स्ट टाइम हम और न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट कि ऑनलाइन मोड में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट टास्क। ओके, सो दैट इज़ वाई मैं आपसे हमेशा शुरू से ही कहती आ रही हूँ कि यू हैव टू सॉल्व different numerical by your own. You can ask queries. Okay, I'm here with you. If you have any problem, you can ask that questions, that concept. I will tell you the answers. Okay, but still, because +1, these as I told earlier, that kinematics, dynamics, these topics are basically fully devoted to the numerical. So some numericals, whatever numericals are possible here, I will solve that numerical for you, and you can solve other numericals, more numericals from different books for your practice. So that's all for today. Next time I will come with a new topic, that is straight motion in a straight line, and I will basically focus over the numerical part. Okay, theoretical part that are very simple for you, you can easily grasp that part. I will tell you, I will share you that explanation of that kind of topic, but basically my focus will be over the numericals in straight line motion as well as in motion in a plane. Okay, and afterward Newton's law of motion, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, and bye bye for now.